क्या है बेटा, क्या नाम तुम्हारा? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜੀਆਂ? ਹਾਂ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਾਫੀ ਟੂ ਆਲ। ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉન્નਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉન્નਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉન્નਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਚਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਔਰ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੋਗੈਂਬੋ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਾ ਮੋਗੈਂਬੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਪਲ ਬੈਠੇ, ਬੇਟਾ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਕਤੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਰਲ, ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਰਲ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਲ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖੀ ਏਡੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਰਾਬੀਆ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੀਬ 170 ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੂ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੌਰਨ ਵਿਦ ਅ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ। ਮੈਂ ਗੋਲਡਨ ਸਪੂਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, MLA ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਖੇਡੇ। ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਖੁੱਦਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡ ਗਈ ਤੇ ਟੌਰ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆਪਦੀ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਸਕਸੈਸ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੌਂਕਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਟੌਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ BA ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਦਮ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 2 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਅ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਬਾਪ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਉਦਣ ਆਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਪਿਓ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾੜਾਪਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਔਖਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ। ਉਹ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਪੋਕ ਆਦਮੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੋਬਲ, ਵਾਕਈ ਨਿਸਵਾਰਥ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਵਾਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ, ਬਗੈਰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਸੂਦ ਸਮੇਤ। ਔਰ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਟਰੱਕ ਜਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਟਕਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ? ਲੈ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੌਕਾ, ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਚੌਕਾ, ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦੇ? ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਰਾਬੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਗੀਆ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਰਾਬੀਆ 'ਚ ਵਸਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿੱਡੀ ਏਡੀ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਸਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਬੀਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕੰਨੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਬਸਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡਾ ਜਵਾਕ, ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਡੋਲਦੀ ਬਸਤਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ ਕਰੇ। ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਪਾਥਵੇ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਪਾਥ, ਉੱਥੇ ਭੱਜੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਟ ਡੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਚੀਵ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ। ਰਿਸੀਵ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਚੀਵ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੌਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ। ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਗੀਂਡਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ, ਐਡਾ ਕੁ ਕੱਦ, ਐਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਗੀਂਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਬਦਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੱਦ, ਕੁੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚੋਨੀ, ਉਹ ਚੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੱਕਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਠਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਢਲਿਆ ਨਾ ਗਲਿਆ, ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ 10 ਦੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 10 ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ। ਉਹਨੇ ਐਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੇਕ ਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਆ ਪਏ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਗਲੋਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਜਾਓ ਕਮਲ ਦਾ ਤਲਾ ਲਈ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਲਾਦੇ ਸੀ, ਉਹ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ 4 ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਰਾਂ ਠਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਲੰਬਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ 4 ਨੇ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ 25 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਕਸੋਨੋ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਕਸੋਨੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਗਿਆ, ਕੌਲ ਡੋਡੇ ਵੇਚੀ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਧੱਕਾ ਖਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ? मेरी पोतरी है 2, ऐसे तो 3 है, वहाँ पे है इसका डैडी है, तेरा लड़का है। अच्छा। 3 पोतरियाँ है। मैंने तीनों को बोला था तो वो कहते मैडम अभी ये छोटी है, वो हो गई 3 साढ़े 3 साल की। 4 साल से शुरू करना है। हाँ, तो बस वो 1-4 साल उसकी जा रही है। बाकी 2 आती हैं? हाँ 2 आती है, बहुत खुशी हो जाते हैं जाती बच्चे। है। सभी जाते हैं? दौड़ते हैं, खुश होकर लड़ते हैं? हाँ मैडम के Very पास जाना good, पढ़ने very के good, लिए। very good, very good, very वो अपने हाथ तैयार हो अपने आप जाते जल्दी तैयार जल्दी। होकर भागते बच्चे। अपने आप? हाँ जल्दी से मैडम के पास जाना है, दौड़ दौड़ के। वाह यार क्या बात है, वेल डन बेटा, शाबाश। हाँ वाकई ये दिस इज समथिंग टू बी प्राउड। मैडम प्यारी बहुत करती है। टीचर ਦਾ मैडम प्यार करती है ना, ये दिखाती नहीं उनको? ना नहीं दिखाती? प्यार कर देते आई जाते हैं। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਠਾ ਠਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਸੰਡੇ को वो सिर नहलाती थी। मैं ना जी जिदन संडे आना, मैं सवेरे सुता उठ के भज किधर लुक लग जाना, जिधर मैं धक्के च लुक गया, सारी पटियाले की पुलिस भजी फिर। मैं प्यो कहता क्यों लुका? मैं जी मेरी सिर नवाਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਗੁੰਝਾ ਕਰਦੀ ਐ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਟਿਕਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘੜਕੈਂਦੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੌਕਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੜ ਪੜੂ। तो देखो ये जो कुछ भी है, देखो आज भी मामा नहीं है, फादर में लगा ना लेबर जॉब लेबर करने बेटा। जब फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर द फंक्शन तो विजय जी ने मुझे बुलाया था, मैं इनको जानता नहीं था इतना। विजय जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा आके देखो। आई वाज सो स्टन्ड। एक बुजुर्ग बंदा खड़ा होके रोने लगा। He started crying कि जी मेरे हमारे लिए कोई स्कूल नहीं था, इन्होंने स्कूल लेके बच्चों को आगे ऐसे पढ़ाया। और he started crying, weeping. I was so moved, so touched। और उसके बाद मैं इनके करीब 3-4 फंक्शन कर लिए थे। मैंने नहीं फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन किया मुझे। ही रहेंगे। और बताओ कोई खास चीज़ इम्प्रूवमेंट में, कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि बेहतर हो सकता है? ये 6वीं तक है क्लास, स्कूल 6वीं तक है? अभी तो नर्सरी है सर। अच्छा वैसे हमारे जो इवनिंग स्कूल में वहाँ 6 तक आते हैं। तो बेटा ये सवेरे होता है कि शाम को होता है? नोबेल फाउंडेशन वाला है वो मॉर्निंग बैच है, और एक जो आईडी चिल्ड्रन वाला मेरी एनजीओ वाला वो इवनिंग बैच है। सो बेटा सवेरे और शाम दोनों टाइम। जी। तो ये दिस इज अप टिल 5th 6th 8th क्या? द इवनिंग इज टिल 6। देन व्हाट वी डू इज स्पॉन्सरशिप्स कलेक्ट करके लोगों से, देन हम बच्चों को एफिलिएटेड स्कूल्स में डाल देते हैं, पंजाब बोर्ड से एफिलिएटेड, सो दे कैन डू अप टिल देयर 12th। अच्छा फिर तो उसके बाद वो बड़े स्कूल में चले हाँ गए। जी। वेरी गुड वेरी गुड। एंड दसो सर थोड़ी मोटिवेशन की कितना शुरू होया हिसाब किताब, मतलब बंदे ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ मोटिवेशन इधर मेरे पिताजी टीचर, मेरे फादर टीचर्स, वाइफ टीचर, सारा परिवार ही। ਸੋ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 7 ਜਦੋਂ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। 7 ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਾਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਇਹ ਚ ਸਾਰੀ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ। ਔਰ तो ये एकता नगर में सारा? हाँ जी सर। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ वो ਮੰਦਰ, मैं देखा अंग्रेजी बोल ਕੋਈ
ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। 3 ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਮੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ शुरू की। बच्चों में पढ़ने की जगह जो भी है। आज एक क्या दिन करना बताओ। खाली इन लोगों को स्कूल में जो है ना बच्चे पढ़ाने जगह नहीं, उन लोगों को जगह चाहिए बच्चों को पढ़ाने की। जगह मैं वचन देता हूँ, हाँ, जगह बस ये बड़ी चाहिए। बड़ी जगह बच्चों लेके को पढ़ाने के लिए जगह आओ, चाहिए। ये अपना जगह बड़ी लेके देंगे, नोट करो भाई। और बताओ। हमारी यही मांग है, उनको जगह दो, बच्चे पढ़े। मैं क्या मांग पहले से पूरी, पहले ये लॉकडाउन खुला ना ही टांग करके खुलेगा वो थोड़ा सा। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ, 3 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੂੰ 4 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲੈ। किराए पे कमरा ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਲਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਾ ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। टेंट पे हमने थोड़ी बड़ी जगह ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਗੁੱਡ ਕਰ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਉਸਕੋ ਉਹ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। मैं एक और कहानी सुनाऊंगी, ਇੱਥੇ ਹੀ याद आ रही सर। एक बार मैं ना एक अपना दोस्त था मेरा, मैं बच्चों के मन की अवस्था बताता हूँ और आपको ये कहता हूँ कि बच्चों को कभी डराना मत। इन्हें कहना भूत आ गया, फलाना आ गया, रात को समझो नहीं कि भूत आ चुका हो जो आप ये हो जाता है। वो जो मतलब उसको भूत की कहानियां सुनाओगे तो वो सारी उम्र उसके मन में रहेगी। बच्चे को कॉन्फिडेंट रखोगे। बच्चे खुद पिक्चर देखते हैं हाँ, भूत वाली, मतलब वो कॉन्फिडेंट डरते ही नहीं है। मैं पिक्चर की भी बात सुनाता हूँ। मैं एक दिन ना अपने एक दोस्त के कोल मैं मेरा फादर कहता था कि किसी रिश्तेदार को भजाना हो उन्होंने 20,000 दो दोबारा नहीं आऊंगा। गल सही थी। मैं अपने दोस्त को 10,000 रुपये नाम उधारे देते उनको बेड़ियाँ बुड़ियाँ खान जाता। माता मैं सुनाता हूँ। बेड़ियाँ खान चले गई उसको, उन्हें 10,000 रुपये दे दिए। अच्छा उस बाद मैं 2-3 बार गया, वो आई नहीं। मैं 10,000 ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਨੋਜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ ਕਹਿ रहा है वो घर पे है नहीं। मैं ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਕਹਿ रहा है वो घर पे है नहीं। ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ? ਇਹ नहीं कौन गया था? आप गए थे? सितंबर के महीने पिछले साल फंक्शन गए दोनों? तो जहाँ से हमने बस पूरा किराया दिया जी, ये लोग गए इसलिए गए थे कि इनको पता चले कि जिस संस्था के साथ हमारे बच्चे पढ़ रही हैं वो संस्था है क्या? वो संस्था है क्या। ठीक है, तो अभी मैंने इनको यही रिक्वेस्ट किया उनको भी कि हमने फास्ट चलना। फास्ट मीन्स कि इनको इतना अच्छा बनाना है कि पूछो मत। लुधियाना में हमारे टीचर क्या करते हैं, कभी 50 रुपए या कभी 100 रुपए का 10 रुपए का नोट कोने में फेंक देंगे। वो जो बच्चे कभी चोरियां करते थे, वाह क्या ठीक है, कग्गा पिंड है सर स्कूल, हाँ वो मतलब ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। तो ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਲਵਾਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ election सम्मान देता हूँ। मैं कहना इतना सम्मान मिलया होया जी, वो मतलब कुछ ही कुछ नहीं। क्या कोई बच्चा अगर 100 का नोट मिल गया स्कूल के पढ़ने वाला जी, उन्हें टीचर ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ चीज। क्या सर इसी बात पे ना मैं आपको कुछ बताऊंगी। बता बेटा। हमारे यहाँ पे हर
कोई भी त्योहार होता है, कंजकी होती है, तो सेलिब्रेशन होती हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, दे ऑलवेज कम के कुछ पेंसिल्स, कॉपीज, ये सब गिफ्ट दें, तो बांट रहे होंगे, बांटते बांटते अगर किसी बच्चे को एक पेंसिल के बाद दूसरी पेंसिल चली गई ना, तो उसमें आके कहते हैं ना कि आंटी ये नहीं हमने लेनी, हमें नहीं दी है। अगर एक रबड़ या एक टॉफी एक्स्ट्रा चली जाए ना, तो कहेंगे हमें एक मिल गई है, आगे वापस दे दो। क्या देखो, ये जो बच्चों को संस्कार बचपन च दिते ना, एंड तक मेरी हार इसे करके नहीं हुई भी मॉरल अथॉरिटी जी माँ ने सिखाई आज तक गई। अब ये जो सीखा है ना, जो ये एजुकेशन ये है, मैं इसको मानता हूँ। थोड़ा मैं एक होर गल सुनाना। मेरा फादर जब मैं कहा ना मैं हूँ एजुकेशन नहीं करनी, छो जी हूँ क्रिकेट खेलना, उन्हें इन्ना तो मेरे शिकंजा कसता, तुम फिर सुनो। सवेरे 5:30 उठता, 3 अखबार मुझे दिए जाते, मेरा क्लास 10th, एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक पंजाबी। उन सबकी हेडलाइन पढ़ के 6:30 जब मैं स्कूल जाना उसने उठ जाना, उन्होंने कहना सुना हेडलाइन, अंग्रेजी की सुनानी 15 मिनट, 5 मिनट अंग्रेजी, 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट अंग्रेजी और 5 मिनट समाचार पर, 5 मिनट पंजाबी, अजीत अखबार, ठीक है। शाम को जब मैंने वापस आना, क्रिकेट खेल के आना, थकिया टुटिया, अब तुम तो छोटी हो, ये जानते होंगे 3 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था, हमने तो नेट इंटरनेट तो देखे थे। हाँ जी, जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे एक मंजरी जोशी आती थी ना, देखो ये मेरी उम्र देखो एक मंजरी जोशी, एक रक्साना सुल्तान, बिल्कुल एक सिद्धेश्वर सिंह बंदा होता था, याद है? बिल्कुल नहीं। वो जी अंग्रेजी में न्यूज सुनानी, फिर उसने हिंदी में सुनानी, वो दोनों न्यूज मुझे सुननी पड़ती थी घरों में। देख देख के उनका चेहरा पक गया था, लेकिन वो न्यूज मुझे सुननी पड़ती थी, वो अखबार मुझे पढ़ने पड़ते थे। जब मैं क्रिकेट छोड़ी ना 99 पहले थे, बड़ा नाम भी हो गया था, सीधा कमेंट्री करने लगा, सीधा कमेंट्री करने लगा। कमेंट्री करते हुए लोग कहें यार ये सिद्धू जो तेरे अंग्रेजी में क्या बात है, तो मुझे अपना बाप याद, तो मुझे अपना बाप याद था कि यार मैं अगर वो अखबार उस टाइम पे ना पढ़े होते, वो अगर उसने न्यूज ना दिखाई होती, तो आज ये कमेंट्री में मेरा ऐसे नाम होता। और लोग कह रहे यार तू हिंदी कैसे बोलता है। मेरा बाप मुझे श्लोक सुनाया, हम फिल्में नहीं थे, मैं 17 साल की उम्र में बेटा पहली बार फिल्म देखने गया। मेरी माँ और मेरी बहन मुझे फिल्म देखने लगी, पिक्चर थी शोले। और जब वो गब्बर सिंह आता ना यूं करके, मैं कानों में ऐसे ऐसे उंगली देंगे, माँ की कुछड़ में यूं छुप जाता, ये कौन आ गया, डाकू आ गया कौन। माँ ने कहा कोई नहीं ये सच्चाई नहीं। मैं फिर करके ना चुप जाना। अच्छा फिर आया जी सीन हेमा मालिनी, हेमा मालिनी रोने लग गई। उसने चल धनो कहा, धर्मेंद्र ने उसको कुछ कहा तो वो रोने लगी, मैं भी रोने लग गया। मेरी माँ का क्यों है, मैं क्या आंटी रोती है, खा मारा मेरे 17 साल की उम्र, तो सोचोगे 17 साल की उम्र तक पहली फिल्म देखी। आजकल के बच्चे छोटे छोटे फोन बड़े होंगे हैं, ना कोई खेलना ना कोई रहना, ना किसी ने बाहर जान देना, वो लगे है इंटरनेट के उत्ते देखने सवेर तो लेके शाम तक पकड़ ले मोबाइल। अच्छा मैं अपने पूजा होती है ना, तो वो पंडित जी आते हैं, वो कहते इतने थले महाराज का प्रकाश है। मेरी माँ का एक छोटा सा मंदिर है ऊपर, वो भी अपना हमारे यहाँ चलता है, तो वो अपनी बेटी को लाएगा कई बार। अच्छा बेटी जब भी शोर बचाएगी उसको मोबाइल पकड़ा देगा, वो सुन हो जाएगी। वो मैं क्या इस मोबाइल की देख दी, मैंने तो हल्का नहीं चलाना है, की देख दी है। वो कह रहे जी मोबाइल जैसे कार्टून ला देंगे, कार्टून ला देंगे बस वो देखिए नहीं। मतलब ये जो ये मोबाइल फोन है ना, बच्चों को खेलने दो, उनको शारीरिक श्रम करने दो, उनको दंड बैठक लगाने दो। ये जो सवेरे से शाम यूं करके देखना है, ये बर्बादी है, छीन लो, मत दो उनको। मैं मतलब आपको ये मेरे अपने अनुभव से बता रहा हूँ। हम क्यों बन गए, इसीलिए 17 साल की उम्र तक बाप ने कभी फिल्म नहीं देखने दी, और क्रिकेट खेलना कंपलसरी होता था। मैं फुट्टा मारता था, बढ़िया शरारतें की मैंने, मैं फुट्टा मारता था, मुझे फिल्म देखने का भी शौक पड़ गया। फिर क्या हुआ, दारा सिंह की कुश्तियाँ, दारा सिंह की कुश्तियाँ दी होंगी। अच्छा दारा सिंह की कुश्ती आनी, मैंने 10 रुपए की टिकट लेनी, जाके ट्रेलर में दारा सिंह की कुश्ती देखी, और बाहर आके 9.5 रुपए की बेचती, पर हर रोज देखी। जो 16-17 दिन आया ना दारा सिंह की कुश्ती देखी मैं, तो उसके बाद मैं लेट हो जाता था ग्राउंड। मैंने भी वहाँ ग्राउंड वालों को टिकाया होता कि बाप आएगा लेट कोर्ट से, तुमने ये कहना कि मैं 3:30 बजे वहाँ था। तो जब मैं फिल्म से वहाँ चलता तो
तो मैं पानी ले गया अपने ऊपर डालता भी बड़ा पसीना पसीना आया और जाके ग्राउंड में घुसता तो गुलजार सिंह गया, पापू नहीं आया, पापू नहीं आया, बड़े टौर ना। अरे उनको किसी ने बता दिया कि जी मुंडा थोड़ा आंदा है, वो कहने कितने बजे आंदा शहरी, 3 बजे चले जाता है। अरे ये गल मुंडा आंदा थोड़ा 4:30, वो आते थे 5 बजे, कोर्ट खत्म होता था 5 बजे, तो मैं आधा घंटा पहले कहना अच्छा 5 बजे आंदा। लो जी एक दिन वो 3:15 पहुंचे, मैंने कहते ग्राउंड चले, मैं खाना खा के वो बाहर जाते, मैं जी ग्राउंड से सीधा फिल्म थिएटर, वहीं से तारा सिंह की कुश्ती पे, और वो ग्राउंड मैं एक टॉर में कुश्ती देख के, उस दिन टिकट भी बिकी नहीं चलती, तो मैंने वो भी 8 रुपये में की। मैं यार चलो ले लो यार, मैंने बाप से पैसे लेता हूँ मतलब कुछ तो देखूँ। वापस आया तो मेरा बाप ग्राउंड के बीच में बैठा, किथे गए? मैं कही मैं मेरा दोस्त सी, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ? ਮੈਂ ਗਈ ਹਰਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ? ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ, मैं गई नहीं छो पकड़ा, मेरे को आज तक उसने हाथ नहीं लगाया। एक ही बात, यहाँ चूल्हे से पकड़ा, वहाँ पाइप चल रही थी, पानी की पाइप उठाई, मेरे चूल्हे पे सारा ग्राउंड खड़ा देखा, और वो पाइप मेरे सर पे से पानी चल रहा है, और मैं रो रहा हूँ, और वो चल रहा है। कुछ नहीं किया उसने, मुझे बेइज्जत मजाल की है। 3:15 बजे नहीं, मैं ग्राउंड के सजे देखा, बापू तो नहीं आ। तो कभी कड़वा भी होना पड़ता है बच्चों के साथ, कभी वो भी, लेकिन उसके हित के लिए होना पड़ता है। सर वो डिसिप्लिन जो माँ बाप ने सिखाया, कोई भी हुनर बेलगाम होगा, कभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा घोड़े की तरह। उसको लगाम लगा दी, समय का घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो वो आपको गिरा देगा, लेकिन उसको अगर लगाम लगा दो ना तो बिल्कुल जहां आप चाहते हो वहां पहुंचा। ये जो हुनर को तराशना, हुनर को लगाम लगाना, अंग्रेजी में कहते हैं टैलेंट इज नथिंग इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन एंड हानेस्ट। जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। सही है कि नहीं? क्या सर, जो आपने सही कह दिया तो बात माँ बाप तो उस टाइम सीधा जी को कहते तीर की तरह से, मतलब मेरे बच्चे लाड़ प्यार में बिगड़ गए, मुझे उन्हें डांटना नहीं आया। उनकी माँ भी उनको, जैसे मेरी माँ टिकाती थी ना मुझे, ठका ठका, वो भी कभी हाथ नहीं लगा सकते। जरूरी नहीं है हाथ लगाना, एक रोक होना चाहिए। अब मेरे बच्चे मेरे पे रोक डाल देते हैं, प्रॉब्लम ये है। सर आप तो पहले कोई यार कहता ही नहीं था सर, पिंड में हम रहते थे, कोई यार नहीं कहता था। अब तो बेटियां कहती थी पापा यार छोड़ो, वो बातें अब पुरानी कहानी। इतना रोब सी, मतलब के देखता नहीं है बस नाल दी नाल टेंशन हो जाती। सही बात है सर। तो ये जो है ना, ज्यादा लाड प्यार भी बच्चों को बिगाड़ देता है। एक लूना पोपट देखी किसी ने? लूना मोपेड, मुझे लूना मोपेड के लिए, लूना मोपेड देखिए, कभी उसको साइकिल की तरह भी चला सकता है आदमी। वो तब उस जमाने में 4000 की आती थी, समझा नहीं? मैं कही मैं मोपेड लेनी, कहना मैं मोपेड लेनी है, मैं कहा हाँ जी मोपेड लेनी है। देखो मेहनत करनी पड़ती थी, कोई चीज लेनी थी ना मेहनत करनी पड़ती थी, कोई ये नहीं है। अब मेरा बेटा कहता है मैं कार लेनी है, भाई मेरा बाप मुझे क्या कर, मोपेड लेनी है, हाँ चल स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट आ रेस च। मैं कही आज कहना फर्स्ट आ, मैं आया करूँगा 6 महीने वाली ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਆ ਜੀ। 4,500 ਦੀ ਲੂਣਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4.5 ਚੋਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। 4,500 ਸੋਚਿਆ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਲੈ ਵੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ ਲੈ। लो जी मेरा बाप आया, उत्थे बैठा, रेस शुरू हुई, मैं चौथा फिर 5वां 6ठे नंबर पे आया, मैं 7वें नंबर पे, मैंने ऊपर देखा ही नहीं, मेरा बाप देखा क्या। वापस आए, कुछ नहीं बोला, क्या यार तू आज अपने दादे की बेइज्जती बड़ी करवाई। उनको पता था कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने दादे को करता, डॉक्टर प्रताप से। कह यार बड़ी बेइज्जती हुई, तेरा दादा जिंदा होंदा ना ते अज रोन लग फाड़ कर बाप ने की किया था, क्रिकेट इतना अच्छा खेलता हूँ, सारा स्कूल देखता है। मैं सवेरे 4:15 बजे उठने लग गया बिना बाप को बताया, दौड़ लगानी, ट्रेनिंग करनी, अपने मन से ट्रेनिंग करनी, ठगा। 6 महीने बाद रेस है, मैं कहा
लो जी रेस शुरू हुई, ठाम मैंने देखा बाप आया, वो पीछे बैठ गया, मैंने देखा कोई नहीं आया। मैं जी बहुत जबरदस्त दौड़ा, 1.5 फुट से सेकंड आया, 1.5 फुट से इतना रह गया सेकंड आया। देखा ऊपर उठ के देखा बाप था, मैं कहा शायद सेकंड नंबर भी दे दे मोपेड। मैंने देखा कितना दिया पर कह रहे बकवास। डॉक्टर प्रताप सिंह का पोता, उसको पता था कि मुझसे ज्यादा ये अपने दादे को, डॉक्टर प्रताप सिंह का पोता सेकंड आ गए। मैं ही उसके 2 दिन बाद NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, देख रहे हैं ये मोपेड के लिए मुझे क्या करना पड़ा, देख तू देख, मतलब साल बीत गया मेहनत करते हुए, साल ऐसे मेहनत करवाता था ऐसे, तब बने क्रिकेटर। साल के बाद ही मैं NIS जाके उठे एक जबरदस्त कोच, उसने आज भी मुझे कहा है कि नाम नहीं बता, वो होता है निष्काम कर, कि गुरु ये कहे कि मेरा नाम नहीं है, मैं आज भी उसका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं उनको आज भी कभी कभी मन में प्रणाम करता हूँ। डेथ हो तो यार पुत्र पहली शर्त, तू नाम नहीं लेगा मेरा, दसेगा नहीं कि मैं तेन सिखाया, पर मेरा शिष्य बनने का मतलब मैनू सवाल नहीं करेगा। मैं कहा जी नहीं करा, मैं कहा जी मैं फर्स्ट आवा, कहना फर्स्ट आएगा 5 मीटर के नाल, 5 मीटर के नाल तेरा बाप कहूगा भी वाकई किसी ने सिखाया, पर तू मेरा नाम नहीं दसेगा। देखो कैसे कोच थे तब, कैसे बंदे थे तब। उसने जी टायर बांधना मेरे पीछे, 20 मिनट टायर बांधा हुआ, फिर उसने साइकिल चलवाना, फिर उसने मुझे वेट ट्रेनिंग सिखाई। वेट ट्रेनिंग मतलब उसने कहा ये पाँव पे वजन बांध के तूने हल्का हल्का चलना है। वो इतने भारी वजन 10-10 किलो इधर, 10-10 किलो इधर, हर रोज एक नई डिफरेंट ट्रेनिंग थी। फिर उसने पहली बार मुझे बताया कि माइकल जॉर्डन कहता है कि उसके पेट की ताकत से सारे शरीर की ताकत है। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल खेलता था तो वो ऊपर रुक जाया करता था हवा में। उससे किसी ने पूछा कि तो ये हवा से रुक के है, कैसे आप हवा में, अंग्रेजी में पूछा हाउ कैन यू स्टॉप इन द एयर, यू टेक अ ब्रेथ। वो कह रहा है इट कम्स फ्रॉम एयर। उसने जी मुझे पेट के सिटअप सिखाए। यहाँ वो 8 पैक नहीं बनते, अब तो हमारा 24 पैक बन गया। वो 8 पैक उसने बनाना था, दे। तीसरी बार मुझे पता था कि अब नहीं मेरे नजदीक आएगा। रेस चालू होने से पहले मैं 15-20 मिनट पहले अंदर खड़ा देख रहा हूँ, बाप आया नहीं है। आधा मिनट जो रहा, पूरा बड़ा चेहरा सबसे आगे बैठा। उसको पता था ये जीते, उसको ये पता था साल सवेरे जाता कहाँ है, सब इंफॉर्मेशन थी, उसको पता था कि ये रेस जीतेगा। मेरी आगे बढ़ जाती, रेस शुरू हुई, मतलब जैसे एथलीट उठता है ऐसे 8-9 मीटर आगे। जब मैं वो धागे के पास पहुंचा ना तो ऐसे पीछे देखा, फिर मैं चल के धागे से ऐसे करके चल के ऐसे देखा, ऐसे मेरी सारी आंखें पर जाती है। देखा तो वो जो बैल्कनी थी अकेला खड़ा हुआ, तालियां मार रहा हूँ। वापस गया, लाल रंग का लूना, उसके ऊपर लव के निशान यहाँ लगे हुए, टू माई डार्लिंग सन। मर्सिडीज ली, उसके बाद मर्सिडीज में आनंद लिया, लूने में आनंद आया। कभी उसको साइकिल चलानी, कभी वो मेरे भी आई ना, मतलब कभी साइकिल लेके चलाना, कभी किस तरह चलाना, कभी किस तरह चलाना, मतलब क्या दिन थे वो। और जो जगजीत सिंह का वो तो नहीं किसका गाना, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए वो दिन आने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तुम्हारे जो बच्चों के दिन है ना, ऐसे बना बनेंगे सर, बने ऐसे बना कि उनको मेहनत करके ये एहसास हो कि मेहनत करके जब वो कुछ लेंगे ना तो उनको ये पता लगेगा कि हाँ इसकी कदर क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है उनको कदर होती है। देखोगे आप औरतें, लड़कियां, उनको जिंदगी में होता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होती हूँ। आजकल तो दही बाद में जमता है, औरत की शादी पहले टूट जाती है। सही है। तो इसलिए अगर वो नौकरी वाली होगी ना तो घर वाला भी थोड़ा सा दबता, मैं तो वैसे ही दबता हूँ भाई अपनी घरवाली से, लेकिन सही बात बोल रहा हूँ, सही है बात। और ये शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है। छा गए भी तुम
सर इस बार एकता नगर में सारा राशन हमारे बच्चों की, बड़े बच्चों की टीम ने बांटा है, 2-2 बार जाके सारा का। अच्छा, जो तेरे साथ वो टीम वाले थे वो बच्चे स्कूल वाले थे? देखिए, हाँ स्कूल के ये थे? हाँ अच्छा। ये तो 12th कर चुके हैं अच्छा। एंड 7 years से मेरे पास थे एंड नाउ दे हैव डन देयर 12th, तो अभी कंप्यूटर्स वगैरह की So you've been with them for how many years, बेटा? 7 years I've been running। और तो धोनी को कब मिली थी सबसे पहली बार? सर 2009 साढ़े 11 साल हो 11 साल हो। तो सर आपको मैं सलाम मारता हूँ। और कोई चीज, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, कोई और चीज हो तो बताओ। और लड़कियों के लिए कुछ उसकी सुविधा कोई। आप जो सुविधा बोलोगे मैं कुछ भी करूँ, उल्टा टंग जाऊँ चाहे, पर मैं करके दूंगा, बताओ कैसे। हम तो ये कहते हैं सर, देखो मेरा तो, हम तो आपको पता फेरी करते हैं, तो अभी तो हम कर नहीं सकते। बताओ ना। लेकिन बेटियों के लिए कुछ इंतजाम, कोई जब तक बड़ी हो जाए तब तक उसके लिए कुछ बन सकता है। बाकी उसका तो आधार कार्ड हमने रात को सब बना रखा है। हाँ, उसका Well, you talk to them। जन्म पत्री। तो उससे बात कर रहा है कि बेटियों के लिए बीमा करना होगा, हाँ? बच्चियों का बीमा करना होगा। अच्छा, बीमा। हाँ। ओहो, so what kind of insurance will you have? बड़ी होते So होते they हुए basically do something when they get their Married। daughters married off। जब शादी होती है, हाँ। जैसे वो सगन स्कीम होती है, सगन scheme। हाँ? हाँ। चलो करते हैं। There are 170 people, Yes। huh? Okay, we'll ask someone to sponsor it. इतनी So how many daughters are there? So we have around 50% girls। तो करीब 70-80 हैं, हाँ जी। हैं? तो उनमें से निकाल दो 60-50 साल जो अभी तो हमारे तो लड़के छोटी है, कोई 1 नहीं। साल की है। ये कुछ छोटे से नहीं दिखाए। You tell me how many kids and what is the kind of insurance that you're looking for every year? ठीक है। Huh? You will have money in your thing also. We will put money over I there. had rather planned that it's better to give the girls some skill rather than so ये that सही they कह रही start है कि earning। उनको इतना काबिल बना दो कुछ सिखा दें कि शादी के लिए लोग भागे फिरे कि जी हमको दे दो ये ना लड़की ना हमको दे ऐसा दो। नहीं कहते, अब हम तो काम पकड़ते हैं, कौन करता है, मेरी बेटी को मैंने दे दी है। आज मेरी बेटी मेरे घर बैठी है सर। बहुत अब यहाँ पे यहाँ बहुत स्कूल ही में। अच्छा। सर ड्रग्स वाला एरिया सारा, हमारे कितने बच्चे ड्रग ट्रैफिकिंग से हमने पिछले 7 years में दूर किए। नहीं तो क्या होता था, ये दारू की बोतल ले कि जहाँ तू राशन वाशन बांटती है ये वही एरिया है हाँ जी सर। सारा, मतलब टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? सर वहाँ 3,500 का एरिया है 3,500 लोग। जी। तो घर कितने हुए? 700-800? 700-800। रोड 700 होगा। तीन भी देते हैं। बाकी तो बहुत ही झुग्गियाँ भी हैं, झुग्गियाँ ज्यादा मतलब यूपी से भी हैं कि यहीं से हैं? यहीं पे ही है। आप यहीं से? सर ये सारे ना माइग्रेंट्स 40-40 साल से गुजरात अच्छा, मतलब जो वहाँ से आए, यहाँ पैदाशी से इधर ही हुई हमारी, तो वो पैदाशी बाहर से आए और यहीं पे रुके। और ये पैदाशी इधर ही हुई हमारी, पैदाशी इधर ही। अच्छा, पैदाइशी है। हाँ, इधर की है। 40-50 हमारे साल बाप दादे पितर हैं? इधर ही है। 40-50 years हो गए। 40-50 years। सर देखो मेरी बात सुनो, जब हम यहाँ संगम सीखने पे हमारी छुट्टियाँ थी, हाँ मैडम। फिर वहाँ से हटवा के फिर हमको दूसरी जगह बिठाया। कहाँ बिठाया था? जो अपना ये अरे आपका रुचि मंदिर, शिवाला मंदिर, अच्छा, शिवाला मंदिर समझ गया मैं उसको। बिठाया। फिर उधर से हम लोग को बोले, कोठिया थी सब चारों तरफ, फिर बोले तुम जाओ। सर वो छाबड़ा साहब है ना, उन्होंने इनकी सेटलमेंट करवाई। छाबड़े ने बेटा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, छाबड़े ने जो बिठाया, ओल्ड तब से वाला हम छाबड़ा लोग जाओ। मैं समझ गया आज हमको वहाँ 50-60 साल हो जो गए। राजीव भाजी के साथ आते हाँ, हैं, हाँ। छाबड़ा साहब, मैं समझ गया। उनके पे ऐसा था ना, इतने सांप निकलते थे, इतना मिट्टी तो हम लोग डाल के समझ लो बूढ़े हो गए। इतनी मिट्टी हम लोग ने डलवाई, फिर जाके आबादी तो फिर इतनी भगवान जानकर बन गई थी कि पूरा हमारा बढ़िया सर बन इनके गया। सारे एरिया में डेवलपमेंट जब मैम एमएलए थे ना, तब इन्होंने रोड्स वगैरह सीवरेज हाँ, तब जाके ऐसा बने, भी- अदरवाइज तो आप एंटर ही नहीं कर सकते थे। जब बारिश होती थी तो इतने ये है ना सारे मेहनत की। माता तेरे को शेर सुना देता हूँ, मेरे को आ गया बस, पूरा शेर आ गया। मैंने अधूरा सुनाया था, वो उस पे एंड करेंगे फिर आपको आपके ना गड्डी आ गई, गड्डी बुला रहा है। मैं शेर सुना के बात करूँ। देखो गुलाब जो होता है ना वो कांटों के साथ, और कमल जो होता है वो कीचड़ के साथ। पहले शेर सुन ले माता, तेरे नाम क्या है माता? मेरा शीला। शीला। क्या बात है, छा गए, ठीक है। शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, पता है? पता है? कांटों में रह के भी, माता तेरे नाम है ये, शीला जी के नाम, कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी
कमल की तरह खिलना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, मगर राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। आ गया भाई, मजा आ गया मुझे। भाजी कमाल कर दी है, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ कमाल है। मुझ खड़ी है ब्याह तो बाद में। चलो उठो। ऑलराइट, आओ तकू ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਜਾਓ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇ? आओ जी, आ माता जाओ ले खोल के रख, खोल के रख, खोल के रख, खोल के रख। आओ, क्या हाल है तेरे? आओ आ जाओ। आ माता आ जाओ। मेरी पेंशन भी लगवा देना। अरे मैं कह रहा हूँ तो सिर माथे जो कि मैं कह रही हूँ सच्ची करते। आओ माता। एक हमारा मंदिर है ना, मंदिर जो आपका वहाँ बनाया छोटा सा है पर क्या चाहते हो वहाँ? वो मंदिर बन जाए। मैं पोल बना के देना भाई, पोल बना के देना भाई। मेरी मेहरबानी, भगवान की मेहरबानी है, मंदिर अपने आप ही बन जाएगा, तो फिक्र मत ले भाई। आओ सर, कितने ने? आओ महाराज, ये सब ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 200 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ 150 ਰਾਸ਼ਨ। 50 ਹੈਗਾ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਲਈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ 100 ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। और 10 और किलो बाकी? चावल, अच्छा, दाल, चीनी, साबन, ਇਹਦਾ नान, ਨਹੀਂ सब कुछ है। ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈ? तो बैग आ गए, हाँ किताबा आ गई हैं, किताबें बैग भी आ आ गए, गई वर्दियां आपकी? भी आ गई हैं सर, वर्दियां भी आ गई। अच्छा, वर्दियां, यूनिफॉर्म वर्दियां भी, पूरा यूनिफॉर्म भी आ आप ही देते हो? हाँ, हाँ, अरे सब यार क्या बात है। माता फिक्र ना कर, मैं कह रहा हूँ बात जबान का पक्का हूँ, याद रखता हूँ। हम भी जुबान के पक्के, हमारी माता रानी करेगी ना। आप गले लग जावे मेरे आगे। आप जो मांग रहे हो ना, यूनिफॉर्म आप वाला जो थे, मिनिस्टर बैग ना लेके बन जाओगे तो फिर हमको बोलना कि सीधा क्या कहते। हमारी माता रानी ने और कोई मिनिस्टर है मेरी। चलो चलो चलो, ला भाई, बिस्मिल्लाह माता तेरे नाम है ये सब, ले जा इनको। चलो ओके बेटा, आई रियली लाइक इट, गॉड ब्लेस। ये किताबें रख भी बैग कितने? आ जाओ, कम आ जाओ माता, इधर आ जाओ, फोटो आ जाओ। आओ भाजी कितने हो? आओ सर इधर आ जाओ। कोई नहीं, छो ये आपे मिल जाएंगे। नहीं, एक मिनट, ओ नहीं ये फॉर्मेलिटी दी। नहीं फॉर्मल, माता इधर आ। जस्ट दिखा रहे थे। नहीं कोई गल। ये ਜਿਹੜੀ यूनिफॉर्म है ना, ये डबल है, मनीष दो माता शर्ट, नो सारा, दो शर्ट, माता बांटेगी सबको। हाँ ठीक है, चलो ये सारा कुछ डबल है। ये दे दो माता दे दो। चलो ये ऐसे है ना, ये जिस बच्चे की है उसका नाम लिखा हुआ, उसका नाम लिखा हुआ सर। चलो ये देखो, चलो बहुत बढ़िया। ये रख, आ जाओ इधर सब, आ जाओ, फोटो खींचने आ जाओ। आओ इधर रख बेटा। आ जाओ, ये आपे कर लेंगे बच्चे ना। ये मैं अपने ड्राइंग रूम में लगानी है, इसलिए तौर से लगाओ। इधर आओ सामने। माता तू आ गया इधर। ला भी ये फोटो बड़ी करा के मैंने लवा दी। आओ इधर आओ, आगे आओ। आ जाओ सब आ जाओ। नोबल फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके, मजा आ गया भाई। सरदार खुश हुआ, मोगैम्बो तो 25 साल पहले खुश हो। जाओ आप रोज ही खुश रहो। तुमने कह दिया माता मैं खुशी रहूंगा। आप रोज ही खुश रहो। एक ना मैं आपसे बात करना चाहती बोलो, दो करो। हमारे ना एरिया में बच्चों के खेलने के लिए पार्क जरूर चाहिए। तो एक ना जैसे डेथ वगैरह हो जाती है, किसी गरीब की बेटी की शादी है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ होती ना, गली में रहते हैं बार कोई। तीन चीज़ां कि मैं ये किसी तरीके में करके जिंदे रहो बेटा, खुश रहो, हंसते वसते रहो। चंगा सर, कौन लड़का जाएगा? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। चल तुम खड़े हो। ओके आ बेटा।
आज तू भी आ जा तू खिंचवानी है खिंचवा ला आ जा भैया लुधियाने में आ जाओ खाया पिया कर मित्रा उरे उरे खाया पिया कर परौंठे खाया कर नाले पनीर मखनी ठीक है ऑलराइट हो गया आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी ये पढ़ाती हैं ये दोनों हाँ जी सर टीचर ये दोनों टीचर है हमारे। अरे क्या बात सर ये 9 इयर्स से जुड़ी हुई है माता तुमसे डरती है दोनों अरे इन्होंने बेटियां क्या अच्छा बहुत करा है इन्होंने अच्छी बात बहुत बढ़िया मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आपका स्कूल अच्छा चलता है बहुत अच्छा थैंक यू वर्क नहीं लो माता आशीर्वाद दे दे माता अरे माता रानी तेरे को बहुत बड़ा बना इतना बड़ा बना दे तुमको कि हमारी आत्मा बस यार मित्र प्यारे आ जा मैं यार एक बंदे तो जेलस होना जिहदी मुछ खड़ी हुंदी है ना 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 मैं बड़ा खुश होना देख के चंगा भाई ओके ओके माता गुड बाय